Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the lesson number 15 of differential equation. In the previous lesson, we have completed up to the theory portions of 11b, and in this lesson, we are going to start the exercise of 11b. In the previous lessons, in the theory part, we have completed linear differential equation and Bernoulli's equation. What is linear differential equation? A differential equation is linear if its dependent variable and its derivative are of first degree and not multiplied together. इसका जनरल फॉर्म था dy by dx plus px is equal py is equal to q. जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी डेरिवेटिव टर्म रहती है, उसकी जो कोफिशिएंट है वो ऑलवेज 1, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी कोफिशिएंट को बोलेंगे p, एंड जो टर्म फ्री फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड q. वी ऑलरेडी नो द वर्किंग रूल ऑफ सॉल्विंग ए linear differential equation. First find p and q. P and q are the function of x, means function of independent variables. Then we have to find integrating factor e power integration p dx. Then dependent variable into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. बस इतना ही काम है हमको करना, ठीक है. So let's get started. First question is 11b exercise. We are following elements of mathematics book and this is on 337 page. Okay. First question is dy by dx plus y is equal to e power minus x. We know the general form is dy by dx plus vy is equal to q. Dependent variable और उसकी डेरिवेटिव टर्म जो है वो दोनों मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होना चाहिए और उसकी डेरिवेटिव की भी डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक. तब हम उसको बोलते हैं लीनियर. एंड पी और क्यू क्या होंगे? फंक्शन ऑफ एक्स होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फंक्शंस रहेंगे. सो लेट्स सी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी डिग्री 1 है. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी भी डिग्री 1 है, मतलब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. हियर p इज 1. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो कोफिशिएंट होगी उसको p बोलते हैं, तो p इज 1. एंड q इज जो टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसकी डेरिवेटिव से फ्री हो उसको बोलते हैं q. दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x. इफ यू हैव ए डाउट कि 1 कैसे फंक्शन ऑफ x है, तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज फंक्शन ऑफ x ना. x पावर 0, 1 इज इक्वल टू वी कैन राइट x पावर 0, सो दिस इज फंक्शन ऑफ x. क्लियर? नाउ फर्स्ट स्टेप इज p एंड q फाइंड करना. सेकेंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला है e पावर इंटीग्रेशन p dx, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी उसकी डेरिवेटिव. e पावर इंटीग्रेशन 1 dx is equal to e power x, because we know 1 dx integrations means dx integration, which is equal to x plus c. And here I am not writing c. In the previous lesson number 13, I have already told you why we are not writing c here. Explain में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों यहाँ पे हम लोग c नहीं लिखते हैं. ओके, सो e power x. नेक्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. ये formula implies that y into integrating factor e power x है. e power x is equal to q की वैल्यू क्या है? e power minus x. इंटीग्रेशन दे दिए, q की जगह पे e power minus x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e power x into dx plus c. e पावर x प्लस e इंटू ई पावर y, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं. तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. y इंटू ई पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी. इम्प्लाइज y इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स इज 0 एंड दिस इज ई पावर 0 dx प्लस c.
any term power 0 is always 1. So y into e power minus x is equal to e power 0 is 1. So this is 1. Integration of dx plus c implies y into e power minus x is equal to dx integration is x. This is x plus c. This is our required solution. Okay, let's move. Next question is x square minus y into dy by dx plus 2xy is equal to 1. We know the linear differential equation is of the form dy by dx plus p of y is equal to q, where the coefficient of dy by dx की जो कोफिशिएंट है वो ऑलवेज 1 होनी चाहिए, पर यहाँ पे 1 नहीं है तो ये लीनियर नहीं है, हमको इसको लीनियर को कन्वर्ट करना पड़ेगा. If you are watching this video, I hope you have already watched my previous lessons, lesson number 13, where I have already explained in detail कि अगर कोई टर्म कोई इक्वेशन लीनियर में नहीं है तो उसको लीनियर में कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. So kindly watch my lesson number 13, then come to lesson number 15. Okay. So इसको कोफिशिएंट 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हर एक टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा. सो डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन बोथ साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों तरफ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करेंगे, मतलब हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड होगा. सो डी वाई बाय डी एक्स x square minus 1 divided by x square minus 1 plus 2xy divided by x square minus 1 is equal to 1 divided by x square minus 1. Implies that x square minus 1 is cancelled out. So dy by dx plus 2x by x square minus 1 into y is equal to 1 by x square minus 1. Now this is the dependent variable की पावर 1 है, उसकी डेरिवेटिव की भी पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाइड नहीं है. सो दिस इज एन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व. सो प्रीवियसली वी हैव dy by dx plus 2x by x square minus 1 into y is equal to 1 by x square minus 1. ये वाला टर्म है. ओके. Now we have to find, first step is finding p and q. So here p is equal to जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ करके उसकी जो कोफिशिएंट होगी उसको बोलते हैं p. दिस इज p. सो p is equal to 2x by x square minus 1. एंड जो टर्म फ्री फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव से फ्री होगी उसको बोलते हैं q. सो q इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1. नाउ वी हैव p एंड q. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज e पावर इंटीग्रेशन p dx which is equal to e power integration 2x by x square minus 1 into dx, which is equal to, here I have told you many times that if f dx is divided by f of x dx integration is there, अगर नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसी का ही डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है तो इसकी फॉर्मूला एक डायरेक्ट लिख सकते हैं ln f of x mod प्लस c. ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला ऐसा होता है. ओके, प्लस सी. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट if you want to find, then you can do here, let x square minus 1 is equal to t, differentiating both side. We already know about substitution method. 2x dx is equal to dt, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर लिए. अब पुट करेंगे 2x dx की जगह पे dt पुट करेंगे, e पावर इंटीग्रेशन dt x स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे t बाय t, e पावर 1 बाय t dt इंटीग्रेशन इज ln t प्लस c. सो ln t हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर में c नहीं लिखते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेसन.
So e power ln t, and if we substitute something, we have to back substitute. So e power ln x square minus 1, okay, which is equal to, this is the formula, okay. So which is equal to, this is x square minus 1, because e power ln f of x is equal to f of x. ये एक फॉर्मूला है, ओके. बट इफ यू वांट टू अवॉइड दिस 1 2 3 टर्म, अगर 3 टर्म्स को अवॉइड करना है तो ये वाला फॉर्मूला अगर याद है तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, दैट ई पावर इंटीग्रेशन 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. x square minus 1 derivative is 2x and 2x is in numerator. That means denominator derivative is numerator. So direct I can write e power ln x square minus 1. e power ln f of x is x square minus 1. तो स्टेप्स रिड्यूस हो गया ना. तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला को याद रखते हैं, कुछ कुछ ट्रिक्स को याद रखते हैं. ये एक ट्रिक है, ठीक है. इस ट्रिक को याद रखिए. अगर ये ट्रिक हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट कुछ स्टेप्स को ओमिट कर सकते हैं. सो नाउ वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. Now this is first step is finding p and q. Next step is finding integrating factor. And what is the third step? Third step is dependent variable into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. Okay, implies y into integrating factor is x square minus 1 is equal to integration of q is 1 by x square minus 1, integrating factor is x square minus 1 into dx plus c. यहाँ पे q है, q को पुट कर लिए. implies y into x square minus 1 is equal to x square minus 1 cancel out, integration of dx plus c. y into x square minus 1 is equal to integration of dx is x plus c. This can be your solution. This is your solution. Or if you want to find y is equal to x by x square minus 1 plus c by x square minus 1. You also can write this. x square minus 1 multiplied y है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ में डिवाइड होगा. x प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने एक्स्ट्रा इसको डिवाइड कर लिया. जैसे a प्लस बी बाय सी, a प्लस बी बाय सी इज इक्वल टू a बाय सी प्लस b बाय सी लिख सकते हैं ऐसे. उसी को ही मैंने यहाँ पे यूज की हूँ, दैट x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1. दिस इज द सॉल्यूशन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. इट इज ऑल्सो नॉट लीनियर बिकॉज dy बाय dx की कोफिशिएंट फर्स्ट 1 होनी चाहिए. So let's divide 1 minus x square both side. So dy by dx 1 minus x square divided by 1 minus x square plus 2xy divided by 1 minus x square is equal to x into 1 minus x square root by 1 minus x square. Implies that 1 minus x square is cancel out. dy by dx plus 2x by 1 minus x square into y is equal to c. Here it is 1 minus x square power 1 by 2 and in the denominator it is power 1. So अगर a power suppose x power a by x power b है, then we can write x power a minus b. Yes or no? अगर सेम बेस डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है. सो हियर आई कैन राइट x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ माइनस 1. Clear? Which implies dy by dx plus 2x by 1 minus x square into y is equal to x into 1 minus x square power minus half. Now
First step is, this is linear differential equation. First step is finding P and Q. So P is equal to जो y की कोफिशिएंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो कोफिशिएंट होगी उसको P बोलते हैं. तो P हो गया 2x by 1 minus x square एंड Q हो गया x by 1 minus x square power half. This half is on numerator minus, so in denominator it will be plus. X power minus a is equal to 1 by x power a लिख सकते हैं. Now finding integrating factor e power integration p dx, e power integration 2x by 1 minus x square into dx, which is equal to e power integration c. Derivative of 1 minus 2x is minus 2x. Derivative of 1 minus x square by dx is equal to d1 by dx minus dx square by dx. d1 by dx is 0, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है. माइनस dx square by dx will be 2x, x square की डेरिवेटिव 2x. ओके, x पावर n की डेरिवेटिव होती है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. सो दिस शुड बी माइनस 2x, बट हम लोगों के पास है 2x, तो क्या करेंगे, एक माइनस 1 मल्टीप्लाई और एक माइनस 1 डिवाइड कर लेंगे. ऊपर एक माइनस, नीचे एक माइनस डिवाइड कर लिए. ठीक है. सो ये माइनस अगर मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊं तो e पावर माइनस 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं. क्लियर. सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x विच इज ऑन द न्यूमरेटर. सो e पावर माइनस बाय द फॉर्मूला, by this formula, okay, in the previous question we have know how to use this formula. So by this formula e power minus ln 1 minus x square. Okay, again we know अगर a ln b है, that is ln b power a. So this is minus 1. So e power ln 1 minus x square power minus 1. e पावर ln f of x इज f of x. ये हम बहुत बार कर चुके हैं. e पावर ln f of x इज e पावर ln f of x इज f of x. ओके, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1. माइनस 1 पावर अगर माइनस 1 है तो 1 बाय लेने से पावर 1 हो जाएगा. सो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया. अब नेक्स्ट फॉर्मूला है dependent variable into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c implies y into 1 by 1 minus x square integration of q की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस इज q. तो q की जगह पे हम लोग यूज करेंगे x by 1 minus x square पावर हाफ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c. So next this is equal to, I can write this is equal to y by 1 minus x square is equal to integration of x by 1 minus x square. अगर बेस सेम हो तो पावर एड हो जाती है, इसकी पावर 1 है. सो हाफ प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3 बाय 2. सो दिस इज 3 बाय 2 इंटू dx प्लस c. सो अब हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में. ओके, इंटीग्रेशन चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके. हम लोग को ऑलरेडी पता है कि इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं. सो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड टेकिंग derivative with respect to x. This is minus 2x dx is equal to dt. Okay, or we can write minus 2x, this is derivative minus 2x, dt derivative is dt by dx which is equal to minus 2x dx is equal to dt. But we need x dx. So here x dx अगर रख लिए, उसके बाद क्या बचा, माइनस 2, उसको राइट हैंड साइड ले लेंगे dt बाय माइनस 2. सो x dx इज इक्वल टू dt बाय माइनस 2 implies that y बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x dx की जगह पे पुट करेंगे dt बाय माइनस 2
1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे t, सो t पावर 3/2 इंटीग्रेशन प्लस c implies y इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1/2 कॉन्स्टेंट, सो -1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इसके बाद we can write that this is -3/2 dt integration plus c, okay, because we know if 1 by t power n dt integration, that means t power minus n dt integration, same thing, okay, which we use here. So implies y into 1 by 1 minus x square -1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन की फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी पता है, -3/2 + 1 बाय -3/2 + 1 प्लस c implies y into y by 1 minus x square is equal to -1/2 तो कांस्टेंट है, दिस इज t पावर, दिस इज -3/2 + 2 मीन्स -3/2 + 1, 2 LCM जाएगा, -3 + 2 which is equal to -1/2, so t power -1/2 divided by -1/2 plus c implies y by 1 minus x square is equal to -1/2 into, जो 2 डिनोमिनेटर में हो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज -2 t पावर -12 प्लस c, क्लियर। जो नीचे है a बाय b बाय c मीन्स a इंटू सी बाय b, उसी को ही हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, ओके। implies that here we can write y by 1 minus x square is equal to minus minus plus 2 cancel out, so this is t power -12 plus c which is equal to y by 1 minus x square is equal to, t की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करने के बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, t की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -12 प्लस c which implies y इंटू, जो यहाँ पे डिवाइड में है डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय -12 है न्यूमरेटर में तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ प्लस c which implies y is equal to, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हाफ, पावर हाफ मीन्स रूट, ठीक है। तो ऊपर कैंसिल होकर के क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यस और नो। सी अगर ऊपर a है और नीचे रूट a है, a को हम लोग रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट a इज a, तो एक रूट a कट गया तो ऊपर a हो गया, रूट a हो गया। और एक और तरीके से इसको क्या समझ सकते हैं कि ऊपर a है नीचे रूट a है, मीन्स a पावर ऊपर पावर 1 है, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, a पावर हाफ which is equal to रूट a, ओके। सो हियर y is equal to, I can write, ऊपर गया कट गया तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस दोनों तरफ में मल्टीप्लाई हुआ है तो c में मल्टीप्लाई होकर के c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4, x log x dy by dx plus y is equal to 2 log x, okay, and what is the general form? General form of linear equation is dy by dx plus p of y is equal to q, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी का जो कोफिशिएंट है उसको p, और जो राइट हैंड साइड में फ्री फ्रॉम डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव दैट इज q, ओके। So here the coefficient of dy by dx is x log x, so we have to divide x log x in every term. To find the dy by dx coefficient is 1, we need the coefficient as 1, so divide x log x in every term और in both side, okay, कुछ भी लिख सकते हैं। then we get dy by dx
इसमें मल्टीप्लाई होकर के था x log x, उसमें डिवाइड कर दिए x log x प्लस y बाय x log x is equal to 2 log x divided by x log x, which implies dy by dx, x log x cancel out, plus y by x log x is equal to log x cancel out, 2 by x. Now this is our required differential equation. Okay, this is equation number 1. This is our required differential equation. Here the dy by dx power is 1, so degree is 1. This is a linear differential equation. So how to solve? First we have to find p and q. P is equal to कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है वो p है, और जो फ्री फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव है वो q है. सो हियर वी कैन राइट p इज इक्वल टू 1 बाय x log x, q is equal to 2 by x. Next we have to find integrating factor. Integrating factor is equal to, we know what is integrating factor. Integrating factor is equal to e power integration p dx. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के अकॉर्डिंग ही इंटीग्रेशंस होता है. ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x log x dx. Okay, because the p value is 1 by x log x. Now we cannot find the integration directly, so we have to take in substitution. What is this substitution? हम इस वाला इंटीग्रेशन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते थे उसको कैसे करते थे, उसको जेड लेते थे जिसका कोई डेरिवेटिव उस टर्म में एग्जिस्ट होता हो. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मीन्स उसी को जेड लेंगे जिसका कोई डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो. अगर मैं x को जेड लूंगी, x की डेरिवेटिव 1 है तो यहाँ पे एक log x बच जाएगा. तो अगर मैं log x को जेड लूंगी, इसकी डेरिवेटिव 1 by x है जो यहाँ पे है, ठीक है, तो उसको ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव पहले से ही वहां मौजूद हो. सो लेट log x इज इक्वल टू जेड. उसके बाद क्या करते थे, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन लेते थे. ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. log x की डिफरेंशिएशन 1 by x इज इक्वल टू dz by dx, which I can write 1 by x dx is equal to dz. Okay, and now we can put 1 in place of 1 by x dx is equal to dz. So which is equal to e power 1 by x dx की जगह पे dz. So 1 by log x की जगह पे 1 by log x रहे क्या है, log x की जगह पे पुट करेंगे z. Okay, so 1 by x dx की जगह पे dz. e पावर इंटीग्रेशन, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है, 1 by z dz होता है ln z. प्लस सी नहीं लेते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई वी डोंट टेक एनी कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हियर. ओके, सो e पावर ln z. ओके, नाउ वी नो a formula as e power ln f of x is equal to f of x. I told you so many times. Okay, so here this is simply z. And again I told you a thing that if you are substituting something, then we have to do the back substitution. Okay, so if we put log x is equal to z, then after finding the integration, again we have to put in place of z as log x. So this is log x. Here we get our integrating factor. Next we have to find the solution. What is the formula for the solution? Formula for the solution is, first find integrating factor e power integration p dx, then y into जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dx.
जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते थे। यही है स्टेप्स लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। सो नाउ सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल? y है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx implies y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज log x, y into log x is equal to integration of what is q? q is 2 by x. 2 by x into integrating factor is log x dx. I can write or not? Okay. Again, what can I write? 2 is the constant, na? So just take out from the integration. So 2 into integration of log x by x dx. Again, we can't find the integration directly, so we have to do a substitution. What is the substitution? कौन सा टर्म है जिसकी डेरिवेटिव यहाँ पे हमको दिख रही है? log x को अगर मैं z लूंगी 1 by x इज द डेरिवेटिव ऑफ log x. सो किसको हम लोग z लेंगे? log x को. जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसी को ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिसकी डेरिवेटिव वहां पे पहले से मौजूद हो, ठीक है, इसको याद रखिए. सो लेट log x इज इक्वल टू z, 1 by x dx इज इक्वल टू dz. ओके, हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे दोनों साइड में. अब आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं कैसे डेरिवेटिव करते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कर ली हूँ. log x की डेरिवेटिव 1 by x इज इक्वल टू dz बाय dx एंड dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 1 by dx इज इक्वल टू dz हो गया. अगर वहाँ यहाँ पे सोचा जाएगा कि इसी को ही हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर लेंगे, फिर एक और बार क्यों सब्स्टिट्यूशन लेंगे. तो हर इंटीग्रेशन में एक ही बार सब्स्टिट्यूशन होता है. मतलब अगर इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में मैं ये ली हूँ, सो दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन इज ओनली फॉर दिस इंटीग्रेशन. वी कांट यूज दिस सब्स्टिट्यूशन एज हियर. ओके, दिस सब्स्टिट्यूशन इज ओनली फॉर दिस इंटीग्रेशन. एक सब्स्टिट्यूशन एक इंटीग्रेशन के लिए. ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ सेम ही फंक्शन है इसी को ही यहाँ ले लें, ठीक है. अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे मैं t ले लेती हूँ, वहीं पे भी z लिया है तो यहाँ पे मैं t ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन एक इंटीग्रेशन के लिए. ओके, सो इस दिस इंटीग्रेशन के लिए जब फंक्शन सेम हो तभी भी हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक, कि हाँ log ही है x ही है इसी को ही यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता. हमको फिर से सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा. implies y log x is equal to 2 integration of again 1 by x dx की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? dz एंड log x की जगह पे क्या पुट करेंगे? t इंटू सॉरी dt. 1 by x dx की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? dt इंटू dt. क्लियर? which is equal to what I can write? 2 is the constant. Okay, इंटीग्रेशन ऑफ t इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस c. कांस्टेंट भी तो लिखेंगे ना. सो दिस 2 इज कैंसल आउट. implies दैट y log x इज इक्वल टू 2 कैंसल आउट. t की जगह पे अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन लगेगा तो t की जगह पे क्या लिखेंगे? log x स्क्वायर प्लस c. दिस कैन बी योर आंसर. ओके, once can write this can be your answer, or you have to, if you want to simplify this, then take this log x in right hand side. Implies y is equal to log x plus c by log x. Okay, how can I write this log x? Because I have log x square by log x, na, so 1 log x cancel out. Clear? So if you want to write this as your answer, then also okay. If you want to this as your answer, then also okay. Okay, let's move. Next question is 5 number. 1 plus x square dy by dx plus 2xy is equal to cos x. Again the coefficient of dy by dx is not 1. So we have to make the coefficient dy by dx is equal to 1. Always remember dy by dx coefficient is always 1. So if it's not 1, then the multiplier term, we have to divide this multiplier term on both sides to find dy by dx coefficient as 1. Okay, so dy by dx here is 1 plus x square divided by 1 plus x square.
हर टर्म में हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक डिवाइड कर लेंगे. 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, which implies dy by dx plus 1 plus x square cancel out. 2xy divided by 1 plus x square is equal to cos x divided by 1 plus x square. This is our required linear differential equation. So we have to find the solution of this differential equation. First find p and q. What is p? p is the कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. y है डिपेंडेंट वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इतना है. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है p. p इज इक्वल टू 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. व्हाट इज q? q इज इक्वल टू cos x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. So integrating factor is equal to e power integration of p dx, which is can be written as e power integration of 2x by 1 plus x square dx. Again remember, I have told you a trick that if integration of f dx x by f of x dx, then the result is ln f of x plus c. ठीक, अगर डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसी की डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है तो उसको लिख सकते हैं ln f of x plus c. ये एक फॉर्मूला है. ठीक है, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x. ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय dx. इसकी डेरिवेटिव 1 की डेरिवेटिव होगी 0 एंड एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2x. यस एंड नो? ओके, so this term's derivative is on numerator, so we can write this as e power ln 1 plus x square and plus ये हम लोग नहीं लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में. ठीक है, क्यों नहीं लिखते हैं? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. सो e पावर ln f of x, अगेन ये कौन सा वाला फॉर्म आएगा? ये आएगा e पावर ln f of x. e पावर ln f of x is f of x. Okay, so here put e power ln f of x is equal to 1 plus x square. So we find an integrating factor as 1 plus x square. उसके बाद फॉर्मूला क्या होता था? डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होगा. implies y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है? cos x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. कुछ नहीं है, बस इसको एक याद रखना है और इसको एक याद रखना है. योर सॉल्यूशन विल बी ऑटोमेटिकली फाइंड. ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसको और इसको याद रखेंगे तो हम लोग सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं. So y into 1 plus x square is equal to cos x by 1 plus x square into 1 plus x square. q की वैल्यू लिख ली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लिए. Now these two term is cancel out. Implies y into 1 plus x square is equal to integration of cos x is, we already know what is the integration of cos x. Okay, integration of cos x is sin x plus c. Because integration of cos x dx is equal to sin x plus c. अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है? sin x dx क्या होता है? माइनस cos x plus c. Okay. So now this is our required answer. So one can write this as the answer. Or if you want to find y exactly, then y is equal to, I can write sin x by 1 plus x square plus c by 1 plus x square. This can be your answer. Okay, this or this, whatever you can write. So these are your answer. Okay. Next question is 6 number. dy by dx plus y sec x is equal to 10x. Okay. Here the coefficient of dy by dx is 1. So this is a linear differential equation. Next we have to find p and q.
So P is कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y है. ये है डिपेंडेंट वेरिएबल. इसकी कोफिशिएंट क्या है? sec x है. सो p की वैल्यू है sec x. दिस इज sec x. q की वैल्यू है tan x. ओके. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन p dx. e पावर इंटीग्रेशन sec x dx. Okay, so this is the formula we already know. Integration of sec x dx is equal to ln sec x plus tan x plus c. और इंटीग्रेशन ये एक फॉर्मूला है जिसको हमको याद रखना पड़ेगा. ओके. और इंटीग्रेशन ऑफ अगर sec square x dx हो तो ये होता है tan x plus c. If you can remember the formula, then we can easily solve any type of questions. Okay, so just remember the formulas. This is the formula used to solve any type of questions, so we have to remember the formula. Okay, so e power integration sec dx is equal to e power sec x integration is ln sec x plus tan x. Okay, we don't have to write the integrating factor. We don't have to write the integrating constant here. Is equal to e power ln f of x is f of x sec x plus tan x. I have already told you. E power ln f of x is equal to f of x. Okay. So next, this is our integrating factor. Now we have to find the solution. Dependent variable into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx. Implies that y into integrating factor is sec x plus tan x is equal to integration of q is tan x. q की वैल्यू tan x into integrating factor है sec x plus tan x into dx. Okay. So in left hand side there is no problem, that is sec x plus tan x. Now we have to find the integration of this term. Okay, if you are given this type of term, first what we have to do, we have to multiply this. Integration of tan x into sec x plus tan square x into dx. Okay, मल्टीप्लाई कर दिया tan x को दोनों टर्म में, tan x इंटू sec x फिर tan x इंटू tan x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x. इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे tan x इंटू sec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू, इसकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x होता है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला that integration of tan x into sec x dx is equal to sec x plus c. एक फॉर्मूला है. ओके, सो हियर डायरेक्ट वी कैन यूज द फॉर्मूला एज sec x प्लस. अगर कोई इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स का निकालना हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं. तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख करके. ओके, ये सारी ट्रिक्स हम लोग ने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी देख चुके होंगे. इज इक्वल टू sec x प्लस sec स्क्वायर एक्स, इसको एक्स्ट्रा हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x है. tan x साइन है माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है? 1 dx का इंटीग्रेशन है x प्लस c. ओके, सो हाउ वी राइट दिस? दिस इज c. sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx इंटीग्रेशन दिया है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. एक्स्ट्रा ले लिए. ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस c. ये वाला टर्म हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है. Okay, now this is y into sec x plus tan x is equal to sec x plus tan x minus x plus c.
Clear? This is our required solution. Again, you can write this as your solution, or if you want to divide sec x plus tan x here, then you can also divide this term on right hand side. That will be your answer. Clear?